a mentor for personality development and grooming. He is the recipient of Iconic Fashion Designer of the Year 2018 by SGF International, Lions Honor Award 2018, Kala Sadhana Samman by Iftikhar Academy, and more. Mumtaz ji has, indeed, yes, let's call for an applause. Dabu and Batik of Madhya Pradesh in fashion weeks. He popularized Bagh print of Madhya Pradesh in fashion and the glamour world. He revived traditional royal fashion in Zari Zardozari and brought it in trends. As the discussant for the session, we have Mr. Vardul Singh ji. He holds a postgraduate diploma in journalism and mass communication. He was commissioned in the left as a captain when batch of UPSC. He has also served UN Police and has also been on deputation to the Ministry of Home Affairs. Vardulji is currently posted in a senior position with the Government of India, an avid reader, and his published works include Bhopal Nama, Writing a City, and I'm sure that's one book all of us would wish to read. And thank you, gentlemen. That's all from my side. I would like to open the floor. And I would request the gentleman to please unveil the conversation. A round of applause, everyone. Thank you. Thank you so much. Ladies and gentlemen, today's conversation would be partly in English, partly in Hindi, sprinkled with liberal dose of Urdu, of course. So, if anyone wishes to get a translation, ऐसा हमें नहीं लगता है कि हम में से कोई यहाँ मौजूद है जिसको कि अंग्रेज़ी की ट्रांसलेशन की आवश्यकता है पड़ेगी हिंदी या उर्दू में. तो बहरहाल आज का सेशन हम यहाँ शुरू करते हैं. सबसे पहले मैं मुमताज़ जी आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज का जो मजमू है एथनिक फैशन ऑफ भोपाल, तो हम इस एथनिक फैशन ऑफ भोपाल का तर्जुमा कैसे करेंगे? हाउ डू वी, इसको हम कैसे समझाएंगे अपने ऑडियंस को कि व्हाट इज द एथनिक फैशन? ये पार्ट 1 है. मैं चाहूँगा दूसरा सवाल भी मैं भी पूछ लूँ. दूसरा सवाल इसके साथ जुड़ा हुआ ये है कि जो हम रियासतों के फैशन के बारे में, मैं जब अपनी किताब का रिसर्च कर रहा था तो बहुत कुछ पता लगा. तो उसमें ऐसा क्या है जो कि अभी भी बचा खुचा है और हम आज के कंटेम्प्रोरी फॉर्म में हम उसको कहाँ देखते हैं? Okay, thank you so much. Good morning, everyone. पहली बात तो I really like the topic so much, especially written fashions, not fashion. When you know, fashions, when we talk about this, and especially ethnic, so ethnic fashion, I would really like to tell everybody that ethnic means your traditions, your culture, and of course, what is in your roots. That is ethnic. So here we are talking about Bhopal. So Bhopal is such a wonderful land, such a great place. It was really very small riyasat. But what that small riyasat has done, nobody, no country has done all over the world. First of all, hundreds of years back, when today we talk about women empowerment, we tell women are not getting their rights. But 300 years back, you find lot many women who ruled over this land, ruled over men. People say there were 4 ladies, 4 begums थी. तो हम वर्तुल सिंह जी कह रहे हैं कि not 4, 5, and I say 6. See, such a wonderful place Bhopal was. Like, first you see the big name comes Rani Kamlapati, then comes Qudsiya Begum, जिनका गोहर महल आप देखते हैं,
Then एक नाम which everybody forgets, that is Maji Mamula, या Mamula Bai. See, it is such a big name, this Maji Mamula who ruled here, and the architecture of, the sign of Maji Mamula you can find at VIP Road. The first masjid at the corner, that is, built by Maji Mamula. And uske just baad there is a mosque which is La Limli Mas. हम लोग वापस आते हैं एथनिक Yes. के डेफिनेशन So, what I wanted to tell, these ladies ruled over Bhopal na. So, when ladies rule, they don't rule only, they do so many other things. And these ladies done so many things for Bhopal, which is fashion of Bhopal today. How? One of the Begums of Bhopal, name मैं बाद में बताऊंगा, started one school. And at that time, एक ऐसा school start किया where they used to teach craft in the schools. Okay? The students, girl student used to learn Zari Zardozi there, कढ़ाई there, हाँ, लकड़ी के खिलौने बनाना they used to learn there. They learn Croatia work, Badla work, and motor mechanic work. Can you imagine so many years back? And that is the reason that the women of Bhopal are so skilled. All the, when you go to city, you find every woman knows something craft. And that craft is क्या very important for... इतनी तरक्की पसंद थी, आगे तक की सोच रखती थी बेगमात? बिल्कुल बिल्कुल देखिए उनकी बहुत सोच बड़ी थी. They were religious also, लेकिन see such a beautiful example of religion कि begums wearing burqa, and on this burqa they have a lot of Zari Zardozi work, very beautiful dress and crown on it. And वो Zari Zardozi, वो crown, वो burqa is the fashion today. आप एक बार बता रहे थे कि जो बेगमात के जो क्राउन है, Yes. जो ताज जो उनका है, वो जरी जरदोजी का काम उस पे था और मरून बैकग्राउंड था. Yes. जब yes. हमारी बात हुई जी, तो जी. ये भी जरा बताइए आप. देखिए आप लोग पिक्चर्स गौर से देखिएगा, यहाँ पर मैंने कुछ पिक्चर्स डाली है. हमने देखा था ब्रिटिशर्स के पास क्राउन्स थे और हमारे यहाँ जो बेगम्स ने क्राउन्स बनाए. सबसे पहले मैं आपको एक जरी जो जरदोजी वर्ड है, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन दैट वर्ड. जर मीन्स जेवर, हाँ, जो भी ज्वेलरी है ना उसको जर कहा जाता है. और दोजी का मतलब एवरीबडी नोज दैट, आपने सुना होगा कि बिल्डिंग जमींदोज हो गई, मतलब जमीन में गड़ गई. तो व्हेन यू जब आप ज्वेलरी को, जेवर को कपड़े में गाड़ते हैं तो दैट इज कॉल्ड जरदोजी. सो ये जो बेगम्स ने जो क्राउन बनाया वो वेलवेट और कपड़े में उन्होंने सारे जेम्स को डाल दिया. एंड दैट इज वेरी यूनिक थिंग, यू नेवर फाइंड इट एनीवेयर. और मैंने देखा, मैंने बहुत पढ़ा, आई नेवर फाइंड, नोबडी हैज रिटन दिस. इवन जरदोजी को मैंने विकिपीडिया पर भी कुछ खास नहीं दिया हुआ है. ऋतु कुमार की किताब में भी शायद इसका जिक्र कहीं है. ऋतु कुमार की किताब में बहुत कुछ लिखा है और एक बार हम सिकंदर के साथ जरदोजी पे बहुत कुछ ढूंढ रहे थे, बट वी डिडंट फाइंड एनीथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि जरदोजी पे मिल जाए. और उसकी सुई भी एक खास तरीके की होती है. Yes. This is very important question. All of you should know, or the people, those who are working in fashion, those who want to make their career in fashion, they must know there is a difference between Ari, Zari and Zardozi. Zardozi is, आप देखते हैं कि आजकल बड़े बड़े वर्कशॉप्स होते हैं, उसमें अड्डे लगाए जाते हैं. उन अड्डों पर एक खड़ी सुई होती है, हैंडल के साथ उससे वर्क करते हैं. एंड बताया जाता है कि दिस इज जरदोजी. दैट इज नॉट जरदोजी, दैट इज आरी वर्क. और जो उसकी सुई है उसको कहा जाता है आरी.
वो आरी वर्क है. और when we work with the thread of silver or gold, that is called zari work. But when you work on this fabric with the common needle, जो एक कॉमन सुई होती है जिससे कपड़ों की तुरपाई करते हैं, जब उससे चीजें टाकी जाती हैं, that is called zardozi. लेकिन अभी to make people understand, we use the word zari zardozi together. मैंने भी अभी एक आर्टिकल लिखा था, उसमें भी I use zari zardozi because I want to make people understand. लेकिन अंदर मैंने यही लिखा कि zari is different thing, zardozi is different thing. So it is very important to know. अच्छा, इसी वो मेरा सेकंड पार्ट जो है उसमें क्या बताएंगे कि उसका बचा खुचा स्वरूप आज में हमें, मुझे जहां तक लगता है कि आज जो आजकल वो क्या कहते हैं प्लाजो हाँ. और शरारा कुछ हद तक भोपाल के बेगमात का ही. देखिए, द वर्ड जो यू आर यूजिंग बचा कुचा, तो दिस इज तो इसको तो निकाल दीजिए. नॉट बचा कुचा, लाइक भोपाल इज सच अ वंडरलैंड. आई रेस्पेक्ट इट सो मच एंड लव इट सो मच. हियर people of Bhopal, not people of Bhopal, people of India, you know, they have saved this culture, this fashion. And this fashion is very much into our families, into our, lifestyle. एक ड्रेस है which is जो सिर्फ भोपाल में ही बना है, उसका नाम भी भोपाली ड्रेस है. Okay? And people anywhere live, अगर उनको पता लगता है हम भोपाल से हैं, they say, I want one that Bhopali dress. भोपाली जोड़ा. भोपाली जोड़ा. And भोपाली जोड़ा का क्या जबरदस्त फैशन डेफिनेशन है, you must know. भोपाली जोड़ा जो है, that is 3-piece जोड़ा. One is frock, second is चूड़ीदार पायजामा, and third is 5 मीटर का दुपट्टा. What happened? कि this dress was invented by Begum of Bhopal, and she invented, something written somewhere that the body cuts of women should not be shown. So Begums of Bhopal ne, that is very Islamic modesty. Yes, covering the, and this is the Kareena Kapoor, this orange wearing now. So what happened in this dress? Ki, she designed one frock and put gathers here, one side, and second gathers here at the cut of this, and here, and at the back also यहाँ पर भी एक box दिया गया. To why? The body cuts should not be shown, and full sleeves, and in sleeves also here gathers are there. कथा कलाम मुमताज भाई, मुझे आप जो अभी डिस्क्राइब कर रहे हैं उस पर मुझे एक शेर याद आया है, एक थोड़ा शरारती किस्म का शेर है. जी बिल्कुल इरशाद. भोपाल के ही जावेद अख्तर खान साहब के फादर जान निसार साहब का है कि मुझे याद नहीं है, पता नहीं है कि वो आप जैसे डिजाइनर्स के वो देख के बनाया गया, लिखा गया था या नहीं, लेकिन वो कुछ ऐसा है कि रंग रंग माना की रंग रंग तेरा पैरहन भी है, माना की रंग रंग भी तेरा पैरहन भी है, पर इसमें कुछ करिश्माए अक्से बदन भी है. वाह 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 वाह. यस. तो मेरा सवाल आपसे यहीं पे यहाँ ये है, आपने जो बेगमात का बताया कि वो कैसे उस चीजों को, मॉडेस्टी को ध्यान में रखती थी, तो आप फिगर और कॉन्फ़िगरेशन को कैसे वो करते हैं, कस्टमाइज जब करते हैं आप ड्रेस को? तो मैं यहीं से शुरू करता हूं कि ये जो ड्रेस उन्होंने बनाया, दैट ड्रेस बिकम सो पॉपुलर, लाइक व्हेनेवर कोई भी शादी होती है तो उसमें एक दिन भोपाली जोड़ा पहना जाएगा, एक गरारा पहना जाएगा, शरारा. सो द फैशंस ऑफ भोपाल आर वेरी मच इन आवर लाइफस्टाइल, इन आवर फैमिलीज, इन आवर ब्लड. सेकंड चीज जो आप बता रहे हैं कि कट्स को, फैशन डिजाइनिंग के 4 बेसिस हैं. some people work on the base of fabric. कुछ लोगों का बेस होता है एम्बेलिशमेंट, फैब्रिक पर एम्बेलिश करना है. कुछ लोगों का बेस होता है कट्स ऑफ फैब्रिक, और कुछ लोगों का बेस होता है पर्सनालिटीज,
लाइक आप आइए मेरे पास, आप कौन हैं, क्या हैं, अकॉर्डिंग टू दैट आई विल डिजाइन द ड्रेस। तो ये 4 बेसिस हैं। तो आई थिंक आई एम वर्किंग ऑन ऑल द बेसिस। मेरा एक बेस नहीं है, बिकॉज भोपाल एक ऐसा शहर है जहाँ पर मौसम के हिसाब से फैशंस नहीं बदलते, सब कुछ चलता रहता है, सब कुछ सब टाइम चलता है। सो दिस इज, आई कंसिडर दिस काइंड ऑफ पीपल वेरी कॉन्फिडेंट पीपल, जो कहीं भी कुछ भी पहन लेते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं उस कुछ चीज़ को शायद हम लोग, मैं जो अपनी किताब के लिए रिसर्च कर रहा था और आपसे बातचीत हो रही थी, आपने मेरे लिए, मेरी किताब के लिए कुछ स्केचेस भी किए हैं। अरे आप इनकी किताब देखिए, जो भोपाल नामा आपने लिखा है। एक्चुअली वर्तुल सिंह जी और हम लोग कॉलेज में साथ थे। हाँ, और फिर मैंने डीबी पोस्ट में आर्टिकल देखना शुरू किए 20-25 साल बाद। तो मैंने मेल किया कि आर यू द सेम वर्तुल सिंह हु वाज इन हमीदिया कॉलेज? ही सेड यस। फिर हम लोगों की बातचीत हुई, उनकी बुक तैयार थी, हम लोगों की भोपाल में बात हुई, मैंने आपसे बात की और इन्होंने मुझसे कहा नहीं, मुझे किसी भी तरह स्केचेस चाहिए भोपाल के ड्रेसेस के ऊपर। तो मैंने वो बहुत जल्दी में बनाए और आप देखिए उस किताब के अंदर, इट इज सच अ वंडरफुल बुक। आप उसमें उस किताब को पढ़ेंगे, सो यू विल फाइंड सो मेनी डिफरेंट थिंग्स ऑफ डिफरेंट टेस्ट्स ऑफ भोपाल। मैं जो मेरा जो सवाल था वह आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल दी मेरी किताब के लिए। मेरा जो सवाल ये था कि उसी दौरान हम लोग की बातचीत में एक जिक्र आपने ये किया था कि फैशन जो है वो अमूमन, मैं अपने ऑडियंस को भी बताना चाहूँगा कि ये मान के चला जाता है कि एक बहुत ही अभिजात्य वर्ग के लिए है। इट केटर्स टू द इलीट्स ऑफ द सोसाइटी, लेकिन केटर जरूर करता है, लेकिन उसके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट जो ये जुड़ा हुआ है वो ये कि वो आप बताइए वो क्या जुड़ा हुआ है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि फैशन एक वर्ड जो है ना, इसको एक बहुत अलग तरीके से सोचा जाता है। मेरे ख्याल से फैशन को फैशन टीवी से जोड़ा जाता है। बट व्हेन यू सी, टेक द एग्जांपल्स ऑफ ऑल द डिजाइनर्स ऑफ इंडिया। When I started working, I was the only one designer who was working in cotton and khadi and hand blocks and all. Lekin afterwards, everybody is working in Indian culture, Indian heritage, Indian prints, Indian fabric. So ये fashion तो हमारा, what we are working in our tradition, in our culture, and जो हमारी legacy है, जो हमारा जो विरासत है, हम तो उसको बचाने में और उसको संवारने में लगे हुए हैं। हमारी दूसरी विरासत को हम बचाते हुए हम कहीं से लोकल इकोनॉमी को भी समृद्ध कर रहे हैं। वी आर एनरिचिंग द लोकल इकोनॉमी फ्रॉम द 100%। क्योंकि ज्यादातर जो आपके कारीगर जो होते हैं वो किस तबके के आते हैं वो हम आप सभी जानते हैं। देखिए, जब भी एक फैशन डिजाइनर काम करता है, वो फैशन डिजाइनर, लोग कहते हैं फैशन डिजाइनर्स कमाते हैं, बट फैशन डिजाइनर्स वो जितने भी क्राफ्ट हैं उस शहर के, उसके आसपास के, वो उस क्राफ्ट को समृद्ध करते हैं, उस क्राफ्ट को बचाते हैं, उन क्राफ्ट्समैन को रोजगार देते हैं, उन क्राफ्ट्समैन को अपने घर पे रहकर पैसा कमाने का एक मौका देते हैं और उनको आगे बढ़ने का एक मौका दिया जाता है। जब एक फैशन डिजाइनर काम करता है तो वो टेलर्स के साथ काम करता है, वो प्रिंटर को काम देता है, उसके बाद वो कारीगर, जरी जरदोजी के कारीगर को काम देता है, वो बॉर्डर्स क्रोएशिया का करवाता है तो वो क्रोएशिया के कारीगर को काम देता है, फिर उसमें वो मुकेश वर्क को, बादला वर्क करवाता है, वो उसको काम देता है। एक ड्रेस के अंदर इतने सारे कारीगर काम करते हैं। दुपट्टे की चुनाई होती है तो चुनाई वाले को काम दिया जाता है, क्रश किया जाता है। सो वन फैशन डिजाइनर गिविंग work to so many craftsmen, and he is the only one or she is the only designer who is really valuing its traditions and crafts. So सिर्फ फैशन वर्ड को एक अलग तरीके से लिया जाता है, बट इट इज ऑल अबाउट आवर ट्रेडिशंस, आवर कल्चर। भोपाल के कॉन्टेक्स्ट में या कहीं के भी कॉन्टेक्स्ट में ये हम कह सकते हैं कि एक जेंडर न्यूट्रल टर्म यूज करते हुए
crafts persons. yes, कुछ क्योंकि भोपाल में तो हमारे ख्याल से ठीक उल्टा ही है. आप अगर पॉटरी एग्जीबिशन जो हम देखते हैं हर साल जो यहाँ पे आपके गौहर महल में, वहाँ भी में हम ज़्यादातर अमूमन जो होती हैं वो औरतें होती हैं जहाँ जो जी जी तो मेरा जो आपसे अगला सवाल है वो ये है कि क्या बेगमात के समय में कोई ऐसा फैशन डिजाइनर था? क्योंकि द रिबल सुल्तान में एक जगह, रिबल सुल्तान कह रहे हैं, द रिबल प्रिंसेस में अबीदा बेगम साहिबा ने लिखा है कि जो प्रिंस ऑफ वेल्स का जब विजिट हुआ सिकंदर में, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, प्रिंस ऑफ वेल्स का जब विजिट हुआ तो एक बहुत लंबा डिस्कशन इस बात को लेकर हुआ था कि ट्रुप्स का यूनिफॉर्म क्या होना चाहिए और यूनिफॉर्म का कलर क्या होना चाहिए. तो उसमें जो है जो वीटो पावर दिया गया था, ऑब्वियसली उस सुल्तान जहां बेगम साहिबा का था, तो सरकार अम्मा ने ये डिसाइड किया कि भाई जो पगड़ी का कलर होगा वो होगा फिरोजी, और यूनिफॉर्म के बारे में वो साइलेंट है. मैंने कुछ पता करने की कोशिश भी की कि आखिरकार ट्रुप्स जो होते थे उस जमाने में, दे वर द पब्लिक फेस ऑफ फैशन एंड द पब्लिक फेस ऑफ Yes, यू नो, yes. सो हु वर द पीपल हु वर थिंकिंग अबाउट इट. जनरल नायडू ने अपनी किताब में लिखा है, मैं उनसे, हालांकि ये सवाल मैं उनसे भी पूछूंगा, बहरहाल ये ऐसी देखिए उस टाइम में ऐसा कुछ, ये तो टर्म भी नहीं था फैशन डिजाइनर वाला, बट देयर वर पीपल एट दैट टाइम, कारीगर को ही सबसे इम्पोर्टेंस दी जाती थी. कारीगर से पूछा जाता था, उसको बताया भी जाता था कमाल है कि भाई हमको ऐसा बनाना है, ये कैसे होगा काम. तो ये काम उस टाइम, और दूसरी बात, महलों के अंदर एक आदमी से नहीं किया जाता था, एक बड़ी टीम होती थी. वो बड़ी टीम, इतने सारे सजेशंस आते थे एंड फाइनल करने वाली तो मैडम ही होती थी, फिर वो उसको फाइनल की जाती थी. तो उस टाइम भी काम ऐसे ही होता है. लेकिन ऐसा आज ऐसा नहीं है कि फैशन डिजाइनर बैठकर काम कर रहा हो कि नहीं मुझे ये डिजाइन मैंने बना दिया. उसके साथ भी वो सिस्टम वही है. मेरे ख्याल से उस टाइम के डिजाइनर बेगम हुई और बाकी सब, जैसे आज फैशन डिजाइनर में काम कर रहा हूं तो मेरे साथ जो भी असिस्टेंट्स हैं, मेरे यहाँ काम करने वाले, मेरे टेलर्स हैं या मेरे जरदोजी के काम करने वाले, वो खुद अपना इनपुट देते हैं. वो लोग तो कभी इतना, टेलर्स इतना अडिग हो जाते हैं, नहीं नहीं सर ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, ये कॉम्बिनेशन बेकार लग रहा है, बेकार ड्रेस होगा. तो वो इस तरह चलते हैं. उन लोगों में देखिए जो काम करता है ना, उसके पास समझ ज्यादा है. वो भी, जैसे मैं भी ड्रेस, कोई मेरे पास यहाँ रॉ मटेरियल रखा है तो मैं उसको बना हुआ देखता हूँ, इमेजिन करता हूँ, और जब ये वर्क करवा रहे हैं तो वो कारीगर भी इमेजिन करता है कि यहाँ पर ये सिल्वर नहीं, यहाँ गोल्ड होना चाहिए, या होना चाहिए, या ऐसा होना चाहिए. तो इस तरह उस टाइम में भी थे. और उस टाइम की समझ से तो आज सारे फैशन डिजाइनर्स काम कर रहे हैं. देखिए हमने एक बार डिस्कस भी किया था, आपसे भी बात हुई थी आपकी किताब के टाइम, कि लोग पूछते हैं कि आपको आप कैसे इंस्पायर होते हैं नए डिजाइन बनाने में, काम करने में, ये कैसा होता है. तो मुझे लगता है कि हमारे या कलर कॉम्बिनेशंस के ऊपर व्हेन पीपल आस्क, तो आई टेल यू नो दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ कलर कॉम्बिनेशंस, एंड यू नो व्हेन यू विजिट. मुमताज भाई, यू हैव प्रीएम्प्टेड मी. मैं ये सवाल आपसे बाद में करूंगा. बहरहाल जो सवाल मुझे आपसे पहले करना चाहिए था वो मैं अभी कर रहा हूं आपसे. ये बताइए कि आपके फैशन की यात्रा, जहां तक मुझे याद है, एक बहुत ही छोटा सा रोल आपने मुहाफिज आइवरी मर्चेंट की फिल्म में, you played a role as well as you had some contribution in the designing part, costume Yes, designing. yes. So उसके बारे में जरा हमें बताएं एक बार. देखिए, I worked in Merchant Ivory Production Hollywood, and that was the film was in custody, and that was a periodical film, and that film needed a lot of property. You know, Ismail Merchant needed that property, old kind of. So I didn't know like कि मुझे कुछ ऐसा बहुत मालूम भी है. मुझे तब पता चला कि आई नो लिटिल बिट. सो फजल ताबिश साहब, हु इज वेरी वेल नोन सेक्रेटरी उर्दू एकेडमी दैट. हाँ, एंड ही सेड कि यू हैव टू डू दिस वर्क एंड यू शुड असिस्ट किशोर डैंग, और उनको लेकर जाओ अलग अलग लोगों के घर में जिनके अच्छा फर्नीचर है. तो आई डिड दैट वर्क. तो देयर द कॉस्ट्यूम वाज डन बाय Loveleen Bands. She got national award for that, and then Rang De Basanti and many films she did. So I saw
costumes there. And once Shabana Azmi wore a dress and she said कि मुझे लग रहा है थोड़ा इधर problem है, and she asked me कि you know is my dress okay? तो I was so young और मैंने भी बोल दिया कि नहीं थोड़ा problem है, तो she said कि तुम मेरे ड्रेस में कमी निकाल रहे हो, एंड हंसने लगी. वहां पर मुझे लगा, फिर मैंने लवलीन बेंस को बताया कि जो आप दुपट्टे ले रही हैं वो उसमें भोपालियत नहीं है. बस इतनी बात हुई, बट आई गॉट इम्प्रेस्ड. दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ. और जब वो उसकी तारीफें हुई प्रॉपर्टी की और उसकी, तो मेरा नाम तो आया था फिल्म के अंदर प्रॉप मैन. मुझे बहुत बुरा लगा था तब, लेकिन खैर आया. तो वो प्रॉपर्टी देखकर, वो फिल्म देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि देयर वाज सो लॉट ऑफ फर्नीचर जो मैंने उस टाइम सोचा और वहां पर उनको दिलवाया. जो ये फिल्म नहीं देखा है, मेरी गुजारिश उन लोगों से है कि ये फिल्म जरूर देखें, और खास तौर से जो भोपाल लवर्स जो यहाँ बैठे हुए हैं. एंड एक और चीज मैं ऐड करना हूं, आप लोग वो फिल्म जरूर देखिए. उसमें सुषमा सेठ जी जो शशि कपूर की फर्स्ट वाइफ बनी है, उनका एक कोर्टयार्ड देखिए, इतना खूबसूरत बनाया था. और वो इतना खूबसूरत कोर्टयार्ड गौहर महल से तोड़ दिया गया. वीआईपी रोड जब बना तो उसको तोड़ दिया गया, वो नहीं है अब, आपको देखने को भी नहीं मिलेगा. बट दैट इज इन दैट फिल्म ओनली. उसमें 3 दालान थे, एक आंगन था. वेरी ब्यूटीफुल वन. एंड सी कॉस्ट्यूम्स इन दैट फिल्म. कॉस्ट्यूम देखिए, एंड शबाना आजमी का हेयर स्टाइल देखिए. दैट टाइम शबाना आजमी के बाल नहीं थे और वो विग से काम किया है. दैट वाज वो फिल्म रिवर की शूटिंग के दौरान जो हुआ, हाँ उस टाइम हुआ था. सो ये मेरा सवाल जो है आखिरी तो नहीं है, लेकिन उसके बाद आप अपना प्रेजेंटेशन दिखाइएगा जी. तो मैं ये इसलिए बिल्डअप कर रहा हूँ कि जब आप प्रेजेंटेशन दिखाएं तो बहुत सारे सवाल जो हैं वो फिर दोबारा पूछने की आवश्यकता ना पड़े. I have often been thinking, and when this opportunity came to me that we are going to have a discussion on the fashion, I have been big admirer of painters as well. And when I started reading about who all the great designers of the world, who all have been inspired by painters particularly. Right. So I realized that Versace and Andy Warhol, मर्लिन मनरो थीम पे जो उन्होंने बनाया था in the 60s, early 60s, that became a rage, and he worked on many occasions with Andy Warhol. Thereafter, what we realize is Dolce and Gabbana, again inspired by one of my favorite painters, Paul Peter Rubens, and if you happen to Google Paul Peter Rubens and Dolce Gabbana, you will realize that what a wonderful inspiration he has had while designing his book from the paintings. It is not plagiarism, but he has lifted the paintings exactly and sort of superimposed on the fabrics he has designed. Yes. Next we come on Christian Dior. Christian Dior was Impressionist era painter Claude Monet. उनके साथ भी वही था कि वो पेंटिंग को लगता है जैसे कि वो वहां से उठा के और अपने फैब्रिक और अपने डिजाइन्स में उसको उन्होंने सुपर इम्पोज कर दिया है. तो मेरा सवाल अब आपसे ये है कि इंडियन डिजाइनर में भी जहां तक मैं जानता हूं रजा से बहुत इंस्पायर हुए हैं आपके ये तरुण तलियानी. तो आपको इंस्पिरेशन जो है वो कहां से मिलता है, खास तौर से कलर्स में, और आपके तस्वुर में जब आप एक डिजाइन करते हैं तो कौन से कलर्स हैं जिनके बारे में आप सोचते हैं? देखिए मुझे नेचर से कलर कॉम्बिनेशंस मिलते हैं. व्हेन आई सी वन ट्री, एक आम आदमी से पूछे तो बोलेगा ये हरा, पेड़ हरे होते हैं. बट व्हेन आई सी, मुझे बहुत सारे रंग उसमें नजर आते हैं. मैंने एक ड्रेस बनाया था, बहुत ऑर्गेन्जा का फ्लेयर लिया था मैंने गाउन के अंदर, और वो जिस मॉडल ने पहना, आज वो सुपर मॉडल है और मिलान और पेरिस में चल रही है, भूमिका अरोड़ा, तो उनको पहनाया था. मैंने उसका नाम ही ओशन रखा था. और मैंने इसलिए ओशन रखा उसका कि मैंने एक बार बड़े तालाब में ही मैंने नज़र डाली, वो बहुत उसमें लहरें उठ रही थी. तो एक साहब ने कहा कि ये पानी गंदा हो गया, हरा हो गया. मुझे हरा नजर ही नहीं आ रहा था, मुझे तो पता नहीं कौन कौन से कलर्स नजर आ रहे थे. सो जब मैंने ओशन वो बनाया,
गाउन, तो मैंने ब्लू तो उसका ऑर्गेन्जा लिया और उसके अंदर मैंने 3 तरह के लाइनिंग्स डाली लेयर्स में, 1 लेयर, 2nd लेयर, 3rd लेयर, और 1 लेयर मैंने लिया टर्कोइज ब्लू, हाँ, एक मैंने लिया डार्क ब्लू, एक लिया वाइट। और फिर मैंने मॉडल को कहा कि तुम इसका फ्लेयर, उसका भी शायद 30-40 मीटर फ्लेयर था, मैंने उसको कहा कि ये करो, तो ये किया उसने जब रिहर्सल में, तो मुझे लगा कि नहीं, ये वेव है, ये सही में वही है। बहुत बढ़िया। तो ये कॉम्बिनेशंस हमको वहां से मिलते हैं। वंडरफुल। और वन मोर थिंग, हाँ, जैसे इन्होंने बताया पेंटर्स हैं, वैसे तो पेंटर्स मैं रहीम मिर्जा हैं भोपाल में, और शोभा घारे जी हैं। मेरी इनसे कई बार बात हुई है, एंड दे वांटेड टू, दे टोल्ड मी कि यू शुड यूज आवर पेंटिंग्स ऑन फैब्रिक। वी आर प्लानिंग कि हम स्पेशली कोई फैशन वीक हो तो उनकी लाइन बनाएं। बट आई गेट लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम महलों से और मंदिरों से बहुत कुछ मिलता है। When I was doing my first fashion week, I was in Khajuraho doing this workshop of Bagh and Zardozi. So when I was doing that Zardozi, so I thought that I should have a motive from Khajuraho. तो मैंने सारे मंदिर देखे. So I found one thing that एक motive है जो सब मंदिरों में है. 3 पत्तियों का है मोटिव, वो हर मंदिर में सबको देखना चाहिए. तो मैंने वो बनाया. एक पूरा भोपाल में वो फ्रेंच के उससे फ्लावर डिलीज का, हाँ, 3 वाला जो है, 3 वाला, वो आपने इस्तेमाल नहीं किया कभी फ्लावर डिलीज? नहीं, वो मैंने नहीं किया. मैंने फिर उसको इस्तेमाल किया, और ये गाउन भी मैंने फिर वो भूमिका अरोड़ा नहीं पहना. तो इस तरह हम जितने भी लोग, और स्पेशली आज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि स्कूल स्टूडेंट्स बैठे हैं, कि अगर आप लोग इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो सिर्फ लोगों के कपड़े नहीं देखिए. नेवर सिर्फ डिजाइनर्स के कपड़े या मैगजीन्स में कपड़े देखकर डिजाइनर नहीं बना जा सकता. डिजाइनर बनेंगे जब आप भीड़ में कुछ आपको चीज नजर आएगी, जब आप आंधी चलेगी तो आप उसको देखिए कि जो पत्ते, पन्नी और चीजें उड़ रही हैं, तो उससे आपको एक अलग तरह का कैनवस नजर आएगा जो आप कपड़ों के ऊपर डालिए. ठीक है? बहुत अच्छा. और आप देखिए, आप भीड़ में जाइए, जब ट्रैफिक जैम होगा और लोग गाड़ियों से अपने चेहरे निकाल रहे होंगे, तो इतने अलग अलग चेहरे नजर आएंगे. उन चेहरों को निकालिए, आप अपने कपड़ों पर डालिए जो किसी ने नहीं डाले अभी तक. और इस तरह देखिए, जो लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप देखिए कि स्टेशन पर कभी जाएं या कभी इस तरह जाएं, तो कुछ भिखारी होते हैं या कुछ एबनॉर्मल लोग होते हैं जिनके पास घर नहीं होता. उनके पास एक ऑप्शन होता है, जितने भी कपड़े हैं सब पहन के ही चलो, एंड दैट गिव्स यू हेल लॉट ऑफ क्रिएटिविटी टू बिकम अ डिजाइनर. मुझे याद आ रहा है कि किसी ने, हमारे यहाँ भोजपुरी में एक शब्द है लुगड़ी. तो लुगड़ी जो होता है, वो जितने पुराने कपड़े होते थे उनको इकट्ठा करके और उससे बनाया जाता था. तो मुझे याद नहीं आ रहा है वो फैशन डिजाइनर कौन था, उसने वो लुगड़ी से उसने ड्रेस बनाया था या बनाई थी, जो कि कहीं देखा गया. सापे साची ने भी एक फैशन शो ऐसा किया था जिसमें सारे मॉडल्स को नॉर्मल दिखाया था, लिप कलर इधर उधर फैला के, एप्पल खाते हुए. अच्छा, मुमताज भाई, हमारे पास समय कम है, थोड़ा जल्दी से आप अपना पीपीटी दिखा दीजिए, फोटोग्राफ्स, और थोड़ा सा हमें जरा इसके बारे में चंद शब्दों में. देखिए, मैं यहां से शुरू करना चाहूंगा. एक और जो मेरा पोस्टर लिटरेचर फेस्टिवल में जो बना है ना, एक बड़ा इत्तेफाक हुआ है कि एक ड्रेस है हमारे भोपाल का जो अभी तक जिंदा है. वो ड्रेस सबसे पहले मंसूर अली खां पटौदी की माँ, जो बेगम, वो भोपाल थी, लास्ट हमीदुल्लाह की बेटी थी, उन्होंने पहना था उनका ड्रेस. फिर उसके बाद वो ड्रेस पहना शर्मिला टैगोर ने, फिर वही ड्रेस पहना करीना कपूर ने. फिर मैंने इंस्पायर होके ये ड्रेस बनाया अपने भोपाल के जरिए. जरदोजी में उनके वर्क की मैंने नकल नहीं की, मैंने सिर्फ कलर कॉम्बिनेशन देखा है और हमने ये ड्रेस बनाया. ये ड्रेस मैंने बनाया था, जो पहनी हुई है उनका नाम हिरा है, उनकी शादी के लिए ड्रेस बनाया. और ये ड्रेस की बहुत चर्चा हुई, बहुत ज्यादा, क्योंकि ये जितने भी बच्चे हैं वो भी देखें, ये प्योर जरी जरदोजी है.
जरी जरदोजी को जब देखा जाए तो उसके उलट के उसको कपड़ा देखा जाए कि वो सच्चाई है कि नहीं है उसमें। तो ये ड्रेस हमने बनाया, ये पूरा मध्य प्रदेश है, दिस ड्रेस। इसका वजह? जो क्या दुपट्टा वजह? है, वजह? दुपट्टा है जो इसका, दैट इज चंदेरी टिश्यू, और ये हैंडलूम है। इसका कुर्ता और जो शरारा, जो ये लहंगा है, ये भी चंदेरी का थिक टिश्यू है। इसके ऊपर हमने जरदोसी बनाया है। तो ये एक सेट है, ये हमारी एक विरासत है जो हमको जिंदा रखना है। मुझे लगता है जो आप बचा कुचा कह रहे थे, बचा नहीं, वो तो बड़ा जबरदस्त तरीके से हमने सहेजा हुआ है, और ये उसके एग्जाम्पल्स हैं। मैं सबसे बोलूंगा कि आप इस ड्रेस को पास से आके देखिएगा, छू कर देखिएगा, और इस तरह की चीजें बनवाइए। अगर आप ये बनाएंगे तो फैशन के जरिए आप जरी जरदोजी के कारीगरों को काम देंगे, आप उनको एम्प्लॉयमेंट देंगे, और एक इंडिपेंडेंट लोगों को बनाने के लिए एक बहुत अच्छा आपका प्रयास होगा। सो क्राफ्ट्स ऑफ भोपाल, क्राफ्ट्स ऑफ इंडिया के ऊपर आप काम कीजिए, लोगों को रोजगार दीजिए, और हमारे शहर को, हमारी शहर की विरासत को हमेशा के लिए सहेजिए, और हम सबको आगे बढ़ने का एक मौका दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद मुमताज़ आपका। और इस डिस्कशन से हम लोगों ने बहुत चीज़ें आज सुनी है, और हमारे ख्याल से उन चीज़ों पर भी हम लोग काफ़ी हद तक प्रकाश डालने में सक्षम हो पाए हैं। जैसे कि पेंटर और डिज़ाइनर के बीच का संबंध, वो एक नया आयाम है, उसके ऊपर फिर कभी और विस्तार से भी चर्चा किया जा सकता है। सो आई हैंड इट ओवर टू दी एंकर नाउ। थैंक यू। इससे पहले मैं भोपाल का बटुआ मैं वर्तुल सिंह को देना चाहता हूं, और राघव चंद्रा जी को भी देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं सर आए प्लीज। मैं कुछ बटुए लाया हूं, और ये बटुए ना बीच में जितने हैं थोड़ा कुछ लोगों को मैं बांटना चाहता हूं, ताकि हमारे भोपाली होने का एक एग्जाम्पल हो कि हम बड़े दिल के लोग होते हैं, और चीजें बांटने में हम भोपाली हैं, और भोपाल के क्राफ्ट पर हमें गर्व है, और हम इस क्राफ्ट को जिंदा रखना चाहते हैं। थैंक यू, क्योंकि बटुए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। थैंक यू। Gentlemen, before you leave, I would also like to open the round for the audience. अगर हमारे ऑडियंस में से किसी को कोई सवाल है तो कृपया हाथ खड़े करें। यस, प्लीज पास ऑन द माइक टू द लेडी इन फ्रंट। सवाल मुमताज़ से है। मैं अस्मा रिजवान हूँ। मुमताज़, आपने रंग की शुरू में बात करी थी। क्लियोपेट्रा के ज़माने में पर्पल रॉयल्टी का कलर होता था। भोपाल की बेगमों के ज़माने में क्या मरून रॉयल कलर होता था, और वो मरून कहाँ से आता था? देखिए, बेगम्स ऑफ भोपाल के टाइम सिर्फ मरून नहीं रंग था, मरून उनके क्राउन का उन्होंने बेस रखा था। लेकिन भोपाल जो महल में पूरे रंगाई का एक बहुत बड़ा, रंगाई और चुनाई, ये दो चीजें वहां पर हमेशा अवेलेबल रहती थी। और बेगम्स तो कमाल फैशन सेंस था उनको कि वहां पर रंगाई के काम लोगों के कराते थे, और यही वजह है। हाँ, और यही वजह है, देखिए भोपाल में तब से जो रंगाई शुरू हुई ना, और वहां पर महल में रंगाई होती थी तांबे के बड़े देगचों में, ओपन देगचे में, और वो कढ़ाई, वो जो डाइंग की जो परंपरा थी वो अभी तक भोपाल में रही। अब थोड़ा नए डायर्स थोड़े बदल रहे हैं, तो वो किसी और मेटल का इस्तेमाल कर रहे हैं, बट ये थैंक यू सो मच, वेरी नाइस क्वेश्चन। लेकिन कलर्स तो सारे हैं। यस सर। आपकी मदद के लिए, जिससे कि आप इस तरीके के जो भोपाल के एथनिक फैशंस हैं, आप इतना काम उसके लिए कर रहे हैं, और आज आप वाकई में मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। इसको संरक्षित और प्रिजर्व करने के लिए सरकार से क्या आपको अपेक्षा या मदद मिलनी चाहिए? आप डायरेक्टली ना भी बताएं, बट आइडियली क्या होना चाहिए कि इसको पूरे देश विदेश तक फैलाया जा सके? उसके विषय जल्दी से उस पर प्रकाश जरूर डालिए। देखिए, पहली बात तो मुझे बहुत सारे क्राफ्ट्स के बारे में किताबें तो मौजूद नहीं थी, लेकिन मुझे मालूम है। वो मालूम इसलिए है कि मेरी मदर को मजबूरी के तहत, गरीबी के तहत बहुत सारे काम करना पड़े। बटुए बनाना, जरी जरदोजी,
कढ़ाई, बादला, कपड़े सीना, और ये किसी एक में मास्टरी की हद तक ये सारी चीजें मौजूद थी। फिर उसके बाद मैंने दैनिक भास्कर के लिए एक आर्टिकल, मुझे एक स्टोरी मिली कि हर हफ्ते मुझे मेरी यादों का भोपाल लिखना है। तो मैं लोगों से, पुराने भोपाल वालों से मिला, आज से 15-20 साल पहले उन लोगों से बात की। तो मुझे लगा कि किताबों में तो कुछ भी नहीं है, विकिपीडिया और गूगल पे कुछ भी नहीं है जो इन लोगों के पास भरा पड़ा हुआ है। तो इनको संजोना चाहिए हमको। फिर अभी एक बहुत अच्छा गवर्नमेंट ने एक काम किया है कि राग भोपाली एक सेंटर स्टार्ट किया है जरी जरदोजी को और जूट को आगे बढ़ाने के लिए। मुझे लगता है यहाँ पर ये इस काम को बहुत आगे बढ़ाना चाहिए। एक जो देखिए, एक रूट की प्रॉब्लम ये है कि गरीब आदमी जब कुछ भी सीखना चाहता है ना, वो उस सीखने के टाइम भी चाहता है कि उसको ये, जब वो सीख रहा है, ये उसके कमाई हाँ, तो उसको कुछ वो एक्सपेक्ट करता है, वो नहीं मिलता उसको। तो हमें अगर किसी को सिखाना है तो उसको भी कुछ उस टाइम का पेमेंट मिलना चाहिए, तो लोग बहुत आएंगे, सीखेंगे। और हम ये नहीं होता कि 100 लोग सीख रहे हैं तो 100 लोग मास्टर हो जाएंगे। जब 100 लोग सीखते हैं तो उसमें से 10-8 लोग निकलते हैं। लेकिन 10-8 लोग निकालना हमारे लिए आज के टाइम में बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या हो गया है अभी कि जो हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े डिजाइनर्स हैं जिनका बड़ा नाम है, वो कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी करके उसमें थोड़ा बहुत जरदोजी या कुछ लगाकर और सारे लोगों को बता रहे हैं, सब लोग समझ रहे हैं कि जरदोजी है, विच इज नॉट। तो इसको बचाना बहुत जरूरी है। ये रक्षान, आप कुछ पूछना चाह रही थी? मेरा सवाल मुमताज़ भाई से है। मैं रक्षा जाहिद, फैशन एक्सपर्ट, और क्योंकि बेगम्स ऑफ भोपाल ग्रुप से मैं जुड़ी हुई हूँ तो अक्सर मुझसे ये सवाल पूछा जाता है और ख़ुद मेरी भी क्यूरियोसिटी। आपने भोपाली जोड़े की बात करी थी मुमताज़ भाई, तो भोपाली जोड़ा हम उसे बोलते हैं लेकिन एक्चुअली तुर्की कुर्ता है, तो क्या ये इंस्पिरेशन हमें टर्की से मिली है? और दूसरी चीज़ ये कि इसके फ्लेयर्स पे भी कुछ मतलब किन्हीं वजहों से इसको तुर्की कुर्ता कहा गया है, तो मैं चाह रही थी कि आप थोड़ा इस पे रोशनी मैंने डालिए। अपनी किताब में लिखा है नहीं, बिल्कुल। इसका ना जो कुर्ता है, जो इसका मिडिल पार्ट है, दैट इज तुर्की कुर्ता। वो तुर्की कुर्ते से इंस्पायर है। तुर्की कुर्ते में एक योक होता है और योक में आगे उसमें गैदर्स होती हैं। तो ये तुर्की कुर्ता नहीं है, वहां उससे लिया गया है, इंस्पायर किया गया है, लेकिन ओरिजिनलिटी भोपाल की है, जिसमें उसमें 6 प्लेसेस हैं जहां पर उसमें चुन्नत दी जाती है। 2 आस्तीनों के अंदर, 2 फ्रंट बैक और 2 साइड में। तो ये भोपाली है, क्योंकि हमारे पहले हम लोग इसको तुर्की कुर्ता ही कहते थे। और तुर्की जो ओरिजिनल ड्रेस है उसमें 5 मीटर का दुपट्टा नहीं होता और उसके अंदर चूड़ीदार पायजामे भी नहीं होता। तो इसलिए इट इज डिफरेंट फ्रॉम तुर्की कुर्ता। लेकिन पुराने भोपाली जितने भी हैं वो इसको तुर्की कुर्ता ही कहते। तुर्की जोड़ा कहता था, तुर्की कुर्ता नहीं, तुर्की जोड़ा। वक्त की कमी है, नहीं तो जी हाँ, ये आपको ये भी बताते कि चूड़ीदार जो है वो भी भोपाल की देन कैसे है, फिर कभी बताया जाए। चलिए हम बढ़ेंगे एक आखिरी सवाल की तरफ। वन लास्ट क्वेश्चन। जी हाँ, जी हाँ, जी मैम। So thank you. My name is Madhu Verma. I'm an environmental conservationist, and my daughter is a designer. She's inspired so much from you, definitely. You know her very well. So very happy to know that you are taking care of how nature inspires you, rather. You very well mentioned कि आप देखिए कि गुबार कैसे उड़ रहा है, पत्तियां कहाँ जा रही हैं, और लहरों का रंग जो आपने भोपाल का देखा, कितनी ब्यूटी है। तो आपके पास वो आंखें हैं देखने के लिए, which I'm very happy to see that. और क्योंकि लिटरेचर फेस्टिवल आप when you look behind, it is the gamut of biodiversity in the country. It reflects so many things. And I worked a lot on tigers of the country and snow leopards and forests and everything. So आपको जो biodiversity, जो पूरा decade है हमारा UN का United Nations decade is a decade of biodiversity conservation and ecosystem restoration. तो हर एक सेक्टर अपना एक रोल प्ले करता है अपनी धरोहर को बचाने के लिए। तो जो हमारी बायोडाइवर्सिटी आप पीछे देख रहे हैं, नदी है, पहाड़ है, हमारे सिटी में माउंटेन्स हैं, वी हैव a repository of migratory birds. Tiger hai, we're going to soon see a movie on tigers of Bhopal, everybody gets inspired. So how do you get inspiration from this kind of gamut of things which Bhopal also offers in your designing? देखिए,
not Bhopal only. Actually, Bhopal ka to, love and affection cannot be seen on a fabric or this. लेकिन मुझे तो लगता है मैं कहीं भी जंगल में जाऊं, किसी पहाड़ पर जाऊं, मुझे कलर कॉम्बिनेशंस नजर आते हैं. और कई बार there are lot of time odd combinations. Those odd combination, when I tell them my tailors to do that, तो वो बोल देते हैं नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा. This is not at all a combination. But it happens. It happens and we are very much inspired from Bhopal. देखिए जब भी कोई ट्रेडिशनल ड्रेस बना रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं इवन जो बेगम्स के टाइम की पुरानी बुक्स हैं उन बुक्स को आप पढ़ेंगे तो उसमें हर बुक में हर पेज के ऊपर कोई बहुत खूबसूरत मोटिव बना है जो जरी जरदोजी में उकेरा जा सकता है. सो व्हेन यू रीड, बस प्रॉब्लम यह है कि सारी की सारी बुक्स उर्दू और पर्शियन में, अगर वो सेम बुक्स ना उन बुक्स को स्कैन किया जाए और उनको हिंदी इंग्लिश किया जाए, सो पढ़ने के साथ साथ वी लर्न so many things of craft and Okay, we'll just have one quick question from the back. पीछे से कोई पूछना चाहे, one quick question please. Just I want to add one information to you that in census 1961 they have published a book on Zardozi and it is very around 300 and 400 pages book and detailed designs and the method of making those patterns and all about the history, everything is there. So it is a very ओके. ओ थैंक यू सो मच. एक और भोपाल यूनिवर्सिटी से एक शायद कविता जैन या कोई सी जैन है, उन्होंने भी पीएचडी किया है जरदोजी के ऊपर किया हुआ है. लेकिन कुछ बहुत ऑथेंटिक चीजें हैं जो अभी भी बहुत छूटी हुई हैं. अभी कोई और भी पीएचडी करना चाह रहा था, मुझसे मिलने भी आई थी वो जरी जरदोजी जो राग भोपाली हुआ था उसमें. लेकिन खैर वो आगे हम लोग बात करेंगे. Okay, thank you so much. Thank you. Ma'am, I'm so sorry but we are running out of time. मैं चाहूँगा आप हॉल के बाहर जरूर उनसे सवाल करें. And for now I would like to request the director of the Bhopal Literature and Art Festival, Raghav Chandra sir, to felicitate our author and the discussant for having such a wonderful discussion on the ethnic fashion of Bhopal and the Begums of Bhopal. A beautiful painting that happens to be the mascot of Bhopal Literature and Art Festival. It is based on the tribal art made by Padma Shri Bhuribai ji. And there goes a mug for our wonderful discussant, Vartul Singh ji. Thank you so much for carrying out an amazing discussion, sir. Thank you so much, gentlemen.